Good morning, dear students. Today I am going to discuss with you sixth lecture of Unit 1. In this lecture, I will discuss about mole concept in solutions, solutions and their types, concentrations of solution, different modes of expressing concentrations, equivalent mass and its calculation, and a few numerical problems. So let us take one by one. In my previous lecture, we have studied about mole concept, amount of substance containing Avogadro number of atoms or Avogadro number of molecules that was equal to 1 mole. Similarly, amount of substance having mass equal to gram atomic mass or gram molecular mass was equal to 1 mole. And in case of gases, 22.4 liter of a gas at STP was equal to 1 mole. So now we will apply this concept in solutions. So first of all, what are solutions? Solutions क्या होते हैं? Solutions में definition देखें, homogeneous mixtures of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. समझना है इसको? मिक्सचर आपने पढ़े हैं दो टाइप के, homogeneous and heterogeneous. So homogeneous mixture is a mixture which is having only one phase that have uniform composition throughout. Okay, so homogeneous mixture means such a mixture which is having uniform composition throughout, okay, and having only one phase. Such a homogeneous mixture of two or more, minimum two or more. Which type of substances? Chemically non-reacting, those substances which do not react chemically with each other. ठीक है? And their composition of mixture can be varied within certain limit, means we can add these substances to a certain limit. For example, if we go on dissolving sugar in water, or we have taken 100 milliliter of water, so in that water we can dissolve only certain fixed amount of sugar. Excess of sugar cannot be dissolved. Okay, so यहाँ पे जो composition है that can be varied, means mixture का जो composition है वो एक limit तक ही हम vary कर सकते हैं, and that जो आपकी लिमिट है that is known as saturation point. ये हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे. Now types of solution. On the basis of number of components, we have binary solutions, ternary और quaternary solution. Binary solution हम पढ़ेंगे ज़्यादा. Binary solution is a solution having two components. Bi means two. So two component solutions हम इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है? टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें तीन या चार कंपोनेंट हो. तीन वाले को टर्नरी बोलेंगे, चार वाले को क्वाटरनरी बोलते हैं. ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट यूज. सॉल्वेंट कौन सा यूज किया आपने? ठीक है, देखिए किसी भी सॉल्यूशन में दो अगर आपके पार्ट हैं तो वो पार्ट जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा. ठीक है, और वो पार्ट जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है. ठीक है, तो बेसिस ऑफ सॉल्वेंट आपने कौन सा यूज किया उसके बेस पे हमारे पास एक्वस और नॉन एक्वस दो टाइप के सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें पानी हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं. ठीक है, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो है जिनमें पानी को एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं किया जाता है. यहाँ पे हम बाकी के सॉल्वेंट यूज करते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किए जा सकते हैं, हेक्सेन उनमें है, बेंजीन उनमें आती है. ठीक है, तो वाटर ना लेके कोई और सॉल्वेंट अगर लें तो ऐसे सॉल्यूशन
क्या होंगे, नॉन एक्वस होंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो सॉल्यूट जो है वो कंपोनेंट होगा जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है बाय मास, ओके, एंड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कितना हमने उसमें सोल्यूट डाला है सॉल्वेंट में, उसके बेस पे सॉल्यूशन हमारे तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं मैंने। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्वेंट है, ये हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इसमें होती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरी मैंने बात की सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आप फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, मींस एक लिमिट आ जाएगी आपके पास, उस लिमिट के बाद अगर आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो वो सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोल देते हैं। ठीक है, और तीसरा सुपर सैचुरेटेड, मींस सैचुरेटेड होने के बाद भी अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो ऐसा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर दो फेजेस हो जाएंगी, मींस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमारा जितना डिसॉल्व होता है उतना ही सॉल्यूट हमारा दोबारा से क्या होने लगता है, सॉलिडिफाई होने लगता है, प्रेसिपिटेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरफ को आप देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट में आप देख रहे हैं सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल हैं एलॉयज, जितने भी एलॉयज हैं ये अमलगम हम बनाते हैं तो वो क्या है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड, मींस लिक्विड कम मात्रा में है, सॉलिड ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप में हाइड्रेटेड सॉल्ट जितने भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का अगर आप फॉर्मूला देखें तो CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हमारे पास बहुत से हैं जिनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है गैस इन सॉलिड टाइप। ठीक है, सॉल्यूट गैस है, मींस कम मात्रा में गैस है, सॉलिड मींस ज्यादा मात्रा में हमारा सॉल्वेंट है जो है वो सॉलिड है। तो इसमें आपका एग्जांपल आएगा डिसॉल्व्ड गैसेस इन मिनरल, अर्थ के क्रस्ट से जब हम मिनरल निकालते हैं तो उन मिनरल में बहुत सारी गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, ये जो तीन सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, ये तीन जो सॉल्यूशंस हैं ये सॉलिड दिखेंगे आपको। ठीक है, तो दीज आर सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ में सॉलिड इन लिक्विड टाइप, मीन सॉल्यूट हमने चेंज किया, सॉल्वेंट लिक्विड रखा अब। ठीक है, तो दिखती सी बात है सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में है और वो लिक्विड है, तो ये तीनों जो सॉल्यूशन होंगे ये कैसे होंगे, लिक्विड दिखेंगे आपको। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप में फॉर एग्जांपल सॉल्ट आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, शुगर आपने पानी में डिसॉल्व कर दी, तो ये कैसा बनेगा आपका सॉलिड इन लिक्विड टाइप। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड टाइप। लिक्विड इन लिक्विड टाइप में हमारे पास एल्कोहल इन वाटर, पानी में अगर डालते हैं तो क्या बनेगा आपका सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पे ये एमल्शन गलत है। ठीक है, इसका ध्यान रखें, एमल्शन यहाँ नहीं आएगा। एमल्शन जो है वो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, heterogeneous है, दैट इज नॉट होमोजेनियस। सो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर टाइप। ठीक है, गैस इन लिक्विड टाइप, इसमें एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं आपके वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे लिक्विड दिखेंगे। ओके, एरिएटेड ड्रिंक्स आप सभी कोल्ड ड्रिंक्स को बोल सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है, तीसरे आपके जो टाइप्स है वो है
गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये तीनों आपके गैसियस होंगे, ये आपके 3 लिक्विड होंगे और ये आपके सॉलिड होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गैसियस टाइप में जो आपका गैस है वो आपने देखना है सॉलिड इन गैस टाइप। ठीक है, तो आयोडीन के वेपर या एयर में चले जाएं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको सॉलिड इन गैस टाइप, एयर जो है गैस है, आयोडीन के वेपर सॉलिड है। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में हमारे पास आ जाता है मिस्ट, ह्यूमिडिटी इन एयर। ठीक है, हवा में जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो लिक्विड है, और एयर आपकी क्या है, गैसियस है। और तीसरा गैस इन गैस, गैस इन गैस में एग्जांपल आपका बेस्ट है एयर। एयर आपका होमोजेनस मिक्सचर है अगर वो प्योर है, ये ध्यान रखना है आपने। इन केस अगर इसमें डस्ट पार्टिकल आ जाए या स्मोक आ जाए तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखें आप। अब आता है नेक्स्ट कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज the amount of solute dissolved in a known amount of solvent or solution। या ध्यान रखें आप, known amount of solvent भी हम ले सकते हैं या known amount of solution, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, solvent में अकेला solvent का अमाउंट लेंगे, ठीक है, solution में हम दोनों का लेंगे, मीन्स solute प्लस solvent। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, क्या, एक अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, ठीक है, और दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पे ही हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, तो जब भी कंसंट्रेशन की बात आएगी तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास दो चीजें हमें बतानी पड़ेंगी, क्या, एक सॉल्यूट का अमाउंट और दूसरा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट। ठीक है, अब आता है मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला तरीका इसमें आता है परसेंटेज। परसेंटेज आपका सिंपल है, क्या करेंगे, 100 पार्ट्स में आप हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जैसे नॉर्मली आप करते हैं। तो पहली टाइप का जो परसेंटेज है दैट इज परसेंटेज बाय वेट, इसको W बाय W हम परसेंटेज बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट पड़ा है उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज बाय मास। ठीक है, W बाय W। तो ये इसका फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसको V बाय V बोलते हैं। ठीक है, ये तब यूज करेंगे जब आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है, तो उन केसेस में वॉल्यूम नापना हमारे लिए इजी होता है, तो इस केस में V बाय V लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आपका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और थर्ड जो आपकी परसेंटेज है दैट इज W बाय V। W आपका मास ऑफ सॉल्यूट होगा ग्राम में, V आपका क्या होगा, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन दैट इज परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेंथ, कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रेंथ, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यहाँ पे देखें सोल्यूट का जो अमाउंट है वो किस में आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है सॉल्यूशन का, लीटर में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है ये। तो इस केस में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। अब यहाँ पे देखें आप, जो आपका नंबर सॉल्यूट का अमाउंट है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स हमने पिछले लेक्चर में आपको कैलकुलेट करना बताए हैं। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, सिंपल फॉर्मूला है
मास ऑफ सॉल्यूट को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मोलर मास हमने पढ़ा था, 1 मोल का जो मास होता है, ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, क्या बन जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और ये वॉल्यूम को हमने लीटर में बदला है। तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डाले हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट अगर आप देख लें तो क्या होंगे, मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल पर लीटर इसके यूनिट आएंगे। ठीक है, बाकी ये कट जाएगा। ओके, मोल पर लीटर या मोल, कैपिटल एम लिख देते हैं। ठीक है, इन केस आयनिक कंपाउंड अगर हमारे पास हो तो उस केस में मोलैरिटी की जगह हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिटी। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि आयनिक कंपाउंड में हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी क्या है, सिंपल, आपने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस कितने लिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस, नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला masses of solute dissolved per liter of the given solution। निकलेगा वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या किया है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का लिया है, 500 सीसी सॉल्यूशन में उसको डाला है। ठीक है, तो उसकी जो मोलैरिटी होगी वो कितनी आएगी, 4.9 ग्राम विच इज इक्वल टू W 98 ग्राम पर मोल। 98 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मास कैसे निकालते थे, एटॉमिक मासेस को ऐड करके H2SO4 फॉर्मूला से। ठीक है, तो 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, और 1000, ये तो पता है ना, H2SO4 का कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 into 1 प्लस सल्फर 32 प्लस 4 into 16, तो टोटल आएगा 98। ठीक है, 98, और ये आपने 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाया है 500 सीसी, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 0.1 मोल पर लीटर आंसर आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में हमारे पास अब सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो किस में लेंगे आप, अब भी लीटर में ही लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला नॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बनाए, पर यहाँ पे एक चेंज आएगी, क्या, मॉलिक्यूलर मास की जगह अब क्या लेंगे हम, इक्विवेलेंट मास लेते हैं सॉल्यूट का। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास लेंगे तो क्या मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास लेने पे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे देखें, अगर W ग्राम किसी सॉल्यूट का हमने लिया और उसको हमने VCC में डिसॉल्व कर दिया, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी दैट विल बी W ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 सीसी पर लीटर डिवाइड बाय VCC। ठीक है, तो इसके जो यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये इक्विवेलेंट मास क्या है ये हम अभी बताएंगे आपको। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, ये नेक्स्ट आपका आर्टिकल अभी आ जाएगा। तो एक सॉल्यूशन जिसमें 0.49 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड का लिया है 250 सीसी ऑफ सॉल्यूशन में, तो उस केस में जो नॉर्मेलिटी आएगी that will be 0.49 ग्राम डिवाइड बाय 49। 49 आपका सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, और ये कैसे निकला, इसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड किया हमने, 2 इसकी क्या है, 2 जो है वो इसकी बेसिसिटी है। ध्यान रखना है आपने, बेसिसिटी किसी भी एसिड की क्या होती है, उस एसिड से कितने हमें, एक मॉलिक्यूल एसिड का अगर हम लें तो उस एक मॉलिक्यूल एसिड से कितने H पॉजिटिव आयन हमें मिलते हैं, मींस कितने प्रोटॉन वो एसिड हमें देता है, वो उस एसिड की क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। ठीक है, तो 98 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 49।
ठीक है, और वैल्यू आएगी 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने निकाला है कैसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी। ठीक है, अभी मैंने बताया 98 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। कैसे निकाला अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। ठीक है, इन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड करके क्या निकल जाता है, मॉलिक्यूलर मास, और उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो ये आपका जो है आ जाएगी वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आप इक्विवेलेंट मास के बारे में जानेंगे हम कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है और उसको निकालते कैसे हैं। डिफरेंट फॉर्मूलाज में आपको बताऊंगा जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मास क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या है, इट इज द मास ऑफ एलिमेंट which either combines or displaces 1.008 parts by mass of hydrogen or 8 parts by mass of oxygen और 35.5 parts by mass of chlorine। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का क्या है, उतना मास उस एलिमेंट का जो क्या करता है, या तो कंबाइन करता है या इतनी आपके पार्ट्स को डिस्प्लेस करता है। क्या क्या 3 कंडीशन है, एक 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ या तो कंबाइन कर जाता है या इतने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ या तो कंबाइन करता है या इतनी ऑक्सीजन डिस्प्लेस करता है, और तीसरी कंडीशन है 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन के साथ या तो कंबाइन करता है या इतनी क्लोरीन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन है। अब इसको निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है वो है एलिमेंट के लिए। अगर किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे उसकी वैलेंसी से। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का निकालना है हमने, तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो आपका 27 है, ये हमने पढ़ा है पीछे। ठीक है, तो 27 है और एल्युमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्विवेलेंट मास कितना आया, 9। ठीक है, 9 जो आपका ग्राम है वो आपका क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास किसका, एल्युमिनियम का। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम का निकालना हो तो कैल्शियम का क्या करेंगे, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है, 40। ओके, 40 और उसकी वैलेंसी कितनी है, 2। 40 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आपका इक्विवेलेंट मास आएगा, 20। ठीक है, तो ऐसे आपने इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली किसी एसिड का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला, देखो क्या किया, मॉलिक्यूलर मास एसिड का लिया डिवाइड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मैंने बताया क्या होती है, किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H पॉजिटिव आयन हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब टूटता है, डिसोसिएट करता है, तो हमें 2H पॉजिटिव आयन मिलते हैं प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी है, 2। ठीक है, अब एग्जांपल हमने लिया, तो एसिड के केस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी से निकलेगा। तीसरा है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का निकालना हो तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस लेंगे और उसकी एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, कितने एक मॉलिक्यूल बेस से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल बेस का हम लें, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिसोशिएट करते हैं, मींस उसके मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं, तो हमें एक Na पॉजिटिव आयन मिलता है और एक OH नेगेटिव आयन मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्योंकि एक OH नेगेटिव मिला तो उसकी एसिडिटी कितनी हुई, 1। ठीक है, तो उस केस में मान लो इक्विवेलेंट मास हमने NaOH का निकालना है, तो NaOH का निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास लेंगे NaOH का जो कि 40 होता है, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। ठीक है, 16 आपका ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, तो टोटल आएगा 40। 40 डिवाइडेड बाई 1, 1 का मतलब आपका एसिडिटी NaOH की 1 है। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 40 ग्राम। ओके,
नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, अगर कोई सॉल्ट दिया है तो उस केस में क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे सॉल्ट का और टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में फॉर्मूला है Na2CO3। Na2CO3 आप जब फॉर्मूला ले रहे हैं तो सोडियम आपका 2 है तो 2 इंटू 23 ये हो गया 46 प्लस 12, 46 प्लस 12 कितना हो गया 58, ठीक है कार्बन, और 58 प्लस कितना हो जाएगा 3 ऑक्सीजन है तो 48, 58 प्लस 48 ये लेके क्या करेंगे टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम की टोटल पॉजिटिव वैलेंसी 2 सोडियम है तो वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक है, एक सोडियम की +1 होती है तो इससे क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन, किसी भी आयन का निकालना हो तो क्या करेंगे उसका फॉर्मूला मास लेंगे और उसके चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कार्बोनेट एनायन का निकालना है तो कार्बोनेट एनायन का क्या ले लेंगे फॉर्मूला मास निकालेंगे वैसे ही जैसे निकालते हैं और उसकी जो चार्ज है, चार्ज इसके ऊपर है -2, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन निकल जाएगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो उनके जो इक्विवेलेंट मासेस हैं वो उनके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड से डिवाइड करके निकाले जाते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मोड है दैट इज मोलैलिटी, स्मॉल एम, स्मॉल एम जो है वो आपका क्या है मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है। तो मोलैलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां आप ध्यान रखना है आपने, इस केस में हम 1000 ग्राम ले रहे हैं मींस पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है, तो निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं किसमें b ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में और m इसका मोलर मास है मॉलिक्यूलर मास है तो उस केस में मोलैलिटी m जो है दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन m, a is the mass of solute, m is its molar mass multiplied by 1000 upon v, 1000 upon v, तो यहां से क्या निकल जाएगी मोलैलिटी निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मोड है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में क्या है किसी भी कंपोनेंट का एक कंपोनेंट हमने लेना है, कोई एक कंपोनेंट आप ले सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होता है, इट इज द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड by dividing the number of moles of that constituent by total number of moles of all the constituent present in the solution, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो दो आपके कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो n1 है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स n2 हैं, ठीक है। तो अगर आपके n1 मोल्स सॉल्वेंट के हैं और n2 मोल्स सॉल्यूट के हैं तो उस केस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपका आ जाएगा n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है आपका वो कितना आ जाएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और किसी भी सॉल्यूशन के लिए ये आपने ध्यान रखना है फॉर ए सॉल्यूशन सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज इक्वल टू यूनिटी, सभी के मोल फ्रैक्शन अगर जोड़ दिए जाएं तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन में अब हम सीधे मासेस यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ मोल्स, बाकी सेम रहेगा। तो मास फ्रैक्शन क्या है, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा और ये आपका मास जो है वो किसका है सॉल्यूट का है, ठीक है। सिमिलरली ये सॉल्वेंट का है और सेम वैसे ही सम ऑफ मास फ्रैक्शन दैट इज आल्सो इक्वल टू यूनिटी। एंड लास्ट इज
पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये हम तब यूज करते हैं जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास हो। फॉर एग्जांपल जैसे एयर में हमने पॉल्यूशन की मात्रा को चेक करना है ना, मान लिया सल्फर डाइऑक्साइड को नापना है कि कितनी है, ठीक है, तो उस टाइम इस तरीके को यूज किया जाता है। या नमक में, खाने के नमक में आयोडीन हम मिलाते हैं सोडियम आयोडाइड की फॉर्म में, ठीक है, तो उसकी कितनी मात्रा हमने डाली है, ठीक है, उसको भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम में, ठीक है। तो क्या होता है पीपीएम, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है, सोल्यूट का मास प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने अभी बताया वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन इन एयर अगर आपने बताना हो तो इसको हम आपके पीपीएम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका पीपीएम ऑफ ए कोई कंपोनेंट है तो उसका पार्ट्स पर मिलियन निकालना हो तो क्या करेंगे, मास ऑफ ए लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे और 1 मिलियन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पीपीएम ऑफ ए निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 8 तरीके हैं, 8 डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता सकते हैं, ठीक है। इन तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जिसमें पहला है नॉर्मलिटी इक्वेशन। नॉर्मलिटी इक्वेशन n1v1 इज इक्वल टू n2v2, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी n1 है और मैंने उसका v1 वॉल्यूम लिया है, तो अगर मैं उसको डाइल्यूट करता हूं तो नया वॉल्यूम मेरे पास V2 होगा और नई जो नॉर्मलिटी होगी वो N2 होगी। क्यों? क्योंकि देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही रहेंगे, सिर्फ क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से नए सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली मोलैरिटी इक्वेशन है, यहाँ पे M1 आपका मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, V1 उसका वॉल्यूम है, ठीक है। आपने जब उसको डाइल्यूट किया, वॉल्यूम V2 बना दिया तो मोलैरिटी M2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हो उस टाइम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। अगर N1 मोल किसी रिएक्टेंट 1 के रिएक्ट कर रहे हैं N2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 के साथ, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में N1 मोल्स जो हैं आपके रिएक्टेंट 1 के हैं और N2 मोल्स रिएक्टेंट 2 के हैं, तो उस केस में ये वाली इक्वेशन लगेगी M1 इंटू V1 अपॉन N1, दिस इज इक्वल टू M2 इंटू V2 अपॉन N2, ठीक है। जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन है NaMaVa, ध्यान देना है आपने, Na इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड, अभी बताया मैंने, Ma is the molarity of acid and Va is the volume of acid, ठीक है। तो Nb is the acidity of base, बेस के केस में एसिडिटी, ठीक है, और एसिड के केस में बेसिसिटी, ध्यान रखना है उल्टा है ये। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस Nb, बाकी Mb उसकी क्या है, मोलैरिटी है, Vb, B स्टैंड फॉर बेस, ठीक है, Vb उसका वॉल्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी, सिंपल रिलेशन है। तो अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी दी हो तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और अगर उसकी मोलैरिटी दी हो तो नॉर्मलिटी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर H2SO4 है तो H2SO4 में नॉर्मलिटी जो है वो मोलैरिटी का डबल होती है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड अगर हम लेते हैं तो नॉर्मलिटी मोलैरिटी के 3 टाइम्स होती है, ट्रिपल होती है। क्यों? ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिसिटी 3 है, यहाँ पे बेसिसिटी 2 है, इसलिए। अब देखें डिफरेंट मोड्स हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए। अब इनमें से कौन से ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये ध्यान रखना, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन, these are preferred over molarity and normality. Why? This is because इन तीनों में मासेज इन्वॉल्व हैं। अगर आप इक्वेशन देखें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेज इन्वॉल्व हैं, केवल मासेज।
जबकि नॉर्मलिटी मोलैरिटी में हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट के हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में लिखा है मैंने, बिकॉज फॉर्मर इन्वॉल्व मासेस, फॉर्मर मीन्स ये पहले वाले, एंड मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी मीन्स जो लेटर हैं बाद वाले जो हैं, दे इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर टेम्परेचर हैज, सिंस टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन मास, टेम्परेचर का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, मीन्स मास आपका विद टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। आपको पता है जब किसी चीज को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, फैलती है, मीन्स उसका वॉल्यूम बढ़ता है। सिमिलरली जब कूल करेंगे तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम्स के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एटसेट्रा। ठीक है, सो फॉर्मर आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये पहले वाले जो तीन मैंने आपको बताया ये क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर के साथ ये वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है क्वेश्चंस आपसे कि गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन किसी सॉल्यूट का आप लें और एक मोलल सॉल्यूशन आप किसी सेम सॉल्यूट का लें। ठीक है, कोई एक सॉल्यूट आपने लिया, एक सॉल्यूशन आपने 1 मोलर बनाया और दूसरा सॉल्यूशन 1 मोलल बनाया, तो गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो आंसर है 1 मोलर। ठीक है, तो एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये ध्यान रखना है आपने, किसी भी सब्सटेंस का, देखो नंबर ऑफ मोल तो दोनों में बराबर हैं, पर यहाँ पे हमने सॉल्वेंट 1 किलो लिया है और यहाँ पे सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर लिया है। ठीक है, तो सॉल्वेंट ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए 1 मोलर सॉल्यूशन हमेशा 1 मोलर से डाइल्यूट होता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, टोटल जो हमने चीजें पढ़ी उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, पहला परसेंटेज, परसेंटेज मैंने बताया 3 तरीके से, W/W, W/V और V/V। ओके, नेक्स्ट आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और यूनिट इसके होंगे ग्राम पर लीटर। ठीक है, तीसरा मोलैरिटी, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन, और यूनिट इसके होंगे मोल पर लीटर या सिंपल एम, कैपिटल एम आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यूनिट आएंगे इसके ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या सिंपल नॉर्मल एन लिखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है मोलैलिटी, मोलैलिटी में एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो यूनिट्स हो जाएंगे मोल पर केजी। ठीक है, या सिंपल एम, स्मॉल एम लिखेंगे। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होंगे पहली बात, और है क्या ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट मास फ्रैक्शन, सेम, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, इसके भी कोई यूनिट नहीं होंगे, मास से मास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका है ppm पार्ट्स पर मिलियन, तो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कहलाता है आपका ppm। ठीक है, और इसके भी कोई यूनिट नहीं होंगे। अब कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। फर्स्ट है आपके पास, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस हमने लिया 2 ग्राम और 18 ग्राम पानी में उसको डिसॉल्व कर दिया, इसकी मास परसेंटेज निकालें कि क्या इस सॉल्यूशन की मास W/W जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी। तो सिंपल है, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो गया, 18 + 2 20 ग्राम। ठीक है, मास परसेंटेज सॉल्यूट का कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो 2/20 मल्टीप्लाइड बाय 100 मींस 10, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो उसका जो परसेंटेज है वो 10% सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in the solution prepared by dissolving 4 ग्राम of it in 250 मिलीलीटर of solution। ठीक है, एक सॉल्यूशन हमने बनाया है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और उसको बनाती बार हमने क्या किया है, 4 ग्राम
सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेके 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं। टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 250 मिलीलीटर है। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, 40 निकाला था हमने अभी, 1000 अपॉन 250, तो यू विल गेट 0.4 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट है a solution of oxalic acid is COOH twice, इसको C2H2O4 भी लिखते हैं, डॉट 2H2O, तो इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, a solution of oxalic acid is prepared by dissolving 0.63 ग्राम of acid in 250 ml of solution। ठीक है, 0.63 ग्राम oxalic acid के लेके 250 ml solution में डिसॉल्व किए गए हैं। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये मोलैरिटी निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट को इसके हमने मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मोलर मास से इसको डिवाइड कर दिया, बाकी वॉल्यूम वही है, तो यू विल गेट मोलैरिटी 0.02 m। सिमिलरली नॉर्मलिटी निकालने के लिए अब यहाँ पे आप देखें हमने 126 की जगह क्या यूज किया, 63, तो 63 जो है वो आपका क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का क्या है, इक्विवेलेंट मास है, ध्यान देना आपने। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास जो है वो आपने कैसे निकाला, 126 मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 क्या है इसकी, 2 इसकी बेसिसिटी है। ठीक है, तो 126 से को 126 को 2 से डिवाइड करके कितना मिलेगा, 63, तो ये आएगा 0.04। अब यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से डबल है, तो ये देखो रिलेशनशिप भी पता चल गया हमें। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड विद 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। अब देखिए दो सॉल्यूशन हमने ले लिए सेम सब्सटेंसेस के, एसिड है दोनों, दोनों को मिक्स किया है, तब आपकी जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होगी वो कैसे निकलेगी। ठीक है, पहला सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर 0.2 मोलर। 0.2 मोलर मींस हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसके 1 लीटर में 0.2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के डिसॉल्व किए हैं। ठीक है, प्लस उसमें ऐड किया आपने क्या, 50 मिलीलीटर किसका, 0.1 मोलर HCl का। ठीक है, HCl का वो सॉल्यूशन जो हमने बनाया है कैसे, 0.1 मोल डिसॉल्व किए कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन के हमने एक का 100 मिलीलीटर ले लिया, दूसरे का 50 मिलीलीटर ले लिया। ठीक है, तो इनका हमने क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, मींस मिक्सचर जो बना उसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो सीधा फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2, दिस इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन हमने मिक्स कर दिए, दोनों की M1 आपकी सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन 1 का, ये दूसरे की मोलैरिटी है और ये उसका वॉल्यूम है। तो जो इन दोनों को मिलाने पे सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2, तो M3 अब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो M3 कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 50। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी 0.167। सिमिलरली नॉर्मेलिटी निकालेंगे, सेम इक्वेशन है, नॉर्मेलिटी आपकी 0.3 नॉर्मल, पर यहाँ ध्यान देंगे आप मोलैरिटी जो है वो डबल है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो नॉर्मेलिटी है वो मोलैरिटी का डबल होगी, तो 0.4 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 50। ओके, सो 0.3 नॉर्मल। तो विद दिस आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप मेरे से स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।